Hi guys. Hi, happy Friday morning. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi guys. So I'm just waiting for Dr. Poonam Mishra to join in. She's a gynecologist in Lucknow, and she's going to be giving us an informative session about how we can actually become anemia-free India. So I know anemia is a big concern. So I'm very excited to have her tell us more. Hi. So just add you in. Okay, I'm just waiting for your request so that you can come online on my live. Hello, hi guys. Okay, I have sent you the request. I hope you get it and we can start the live now. Hi, Dr. Poonam. Hi, how are you? Hi. Hi, good morning. I think we're facing some technical issues, glad that you're finally on. So good morning, Yes. firstly. And I'm super excited, and I've told my audience about how we're going to be discussing how we can make India anemia free. And we're super excited to be getting all the interesting information from you. And let me first just start by maybe if you'd want to give me an introduction, but I've already told my audience that you're a gynecologist from Lucknow. If there's anything you'd like to add, and then we can begin with my questions and the discussion. So first of all, a very good morning from Lucknow, the city of Nawabs. A huge salam alaikum, namaste, and everything. Yes, and I'm very, very thankful to MCure that it has given me a huge platform to be with to be for the interaction with everyone on this huge platform, and it will be very easy to convey my messages to them. So I'm based in Lucknow. I am a gynecologist and obstetrician, and basically I am a cosmetic gynecologist also. So I do mommy makeovers. Yes, after aging as well as after deliveries, there are so many changes in a woman, and she needs her appearance as she was before the delivery. So I try to give the same shape and size after that, and that is also a part of the part of obstetrics nowadays. And I shall be there discussing with anemia because we want to make India anemia free. So the participation from the audience side is also very much needed. Thank you. Bye. So Sure, yeah, definitely, yeah. doctor. So I think yes.
So I was just saying that maybe if we start with a small introduction and let the audience know exactly what we're talking about, and then if and when we get questions, we can definitely take care of them. And so maybe we can just start with what is More Than Bara, and what is the More Than Bara campaign. I think there's a network issue. Are you still on? Okay, I think there was a network issue. Are you back, Dr. Poonam? Hi, so I think Dr. Poonam is facing a little bit of a network issue. Just wait for her to come back, and then we can start with our questions on anemia and how short they would be. Just waiting for them to come back, and please hold on to your Yeah, question. yeah. Hi, doctor. So glad that you're back. Hi. So I'm Okay. back again. Okay, we're already Yes. getting a few questions, but do you want to first start with our discussion and tell people why More Than Bara is the hashtag that we're actually talking about and why it's so important? Should we start with that and then we can take up our questions? Of course. Yes, why not? See, more than Bara, which we always like quote everywhere that yes, you should have more than Bara, because more than Bara is your hemoglobin level should be more than 12. It should stay before like above this 12 number. क्योंकि 12 इज इन हिंदी इट इज 12 तो 12 से ऊपर अगर आपका हीमोग्लोबिन है देन यू आर एन absolutely healthy female or a healthy male also because males में तो खैर 12 से क्या 14 के ऊपर होना चाहिए हीमोग्लोबिन बट फीमेल्स की बात जहां तक हो रही है तो दे शुड बी मोर देन 12 in their with regard of their hemoglobin to be pregnant, they are menstruating every month, blood loss is there, and they have got different kind of body other than like different from males, and they bear a lot. So many times the workload is more, and they give less attention towards their nutritional habits. So that is why they remain below 12. And most of the females in India are below 11 or sometimes below 10 in my OPD. Most of the times I get females with 9, 8 hemoglobin level. So the target is that our Indian females should be having hemoglobin more than 12. Yes. Yes, and I think Dr. Poonam, I am also one of those unfortunate people जिनका hemoglobin level कम है काफी, and in fact my hemoglobin level has not gone above 9 in a very long time. So though I am taking, I'm trying to increase the iron content in my diet, and I am taking supplements also, and it did come at somewhere around 10 recently, but I'm still not anywhere near 12. And I think if you could tell us that, what are the risks that are involved in not being more than 12, and how we can actually, maybe if you could just give us some tips on how we can actually try and improve our hemoglobin level, that would be very helpful to my audience and definitely to me because I'm also suffering from the same problem. I'll go step by step. Okay. So first thing that a person doesn't know what a number is, what is his or her number is regarding hemoglobin. But the problem is that she will be having some sort of weakness, some sort of symptoms which are there. Symptoms for anemia. So let's discuss that first. Okay. The first and foremost thing is fatiguability. बहुत जल्दी थक जाना बहुत जल्दी पैनिक होना थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़े ऊपर चढ़े कुछ काम किया तो बहुत थकान होना एवरी टाइम ड्राउजीनेस सी फील होना नींद आना तो like you don't feel that you are active at all so many times you feel that I should take some rest I'm not that active I'm not feeling good that feels बहुत ज्यादा जब कम होता है हीमोग्लोबिन तो कानों में हमेशा सीटियां बजते रहना and चिड़चिड़ाहट है ना restlessness these things are there
तो अगर ऐसा कुछ है तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज फॉर अ नॉर्मल पब्लिक दैट शी शुड थिंक कहीं मेरा हीमोग्लोबिन डाउन तो नहीं है, तो मीट हर डॉक्टर, देयर हीमोग्लोबिन लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट चेकअप, और डॉक्टर इवेल्युएट करेंगी, खुद देखेंगी कि आपके अंदर आप क्लिनिकली आप कैसे दिखते हो, आप आपके अंदर लाइक कुछ साइंस होते हैं ना जिनको देख के आपको पता चलता है। ये तो सिम्टम्स थे कि मुझे हाँ जी। थकान हो रही है, घबराहट है। हाँ साइंस में होता है कि आप अपने कान के पास यहाँ पे प्रेस करके देखो, ब्लांचिंग होने के बाद तुरंत रीफिलिंग हो जाती है। नाक के ऊपर अच्छा। दिस पार्ट आप ब्लांच करते हो, तुरंत पिंक हो जाता है। हाथ अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हो नॉर्मल हेल्दी फीमेल से, तो आपके हाथ बिल्कुल व्हाइट व्हाइट से येलो येलो से दिख रहे हैं, उनके पिंक पिंक दिख रहे हैं। एंड जो पोर्स होते हैं इनको अगर आप ब्लांच करते हो, दबाते हो, रीफिलिंग हाथ से होती है, देन इट इज ओके। इन जनरल बहुत कम नहीं है हीमोग्लोबिन, लेकिन अगर इट टेक्स टाइम, अगर जो ब्लांचिंग है दैट रिमेन, दैट मीन्स यू आर हैविंग लेस हीमोग्लोबिन। तुरंत डॉक्टर के लिए डॉक्टर डिसाइड करती हैं कि आपके क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, और टेस्ट के बाद अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो देन लाइक वी पीपल वी गिव द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट फॉर द लाइक चेंजेस इन योर फूड हैबिट्स। आपको आयरन रिच डाइट लेना है, और आयरन रिच डाइट इज वेरी मच अवेलेबल एट योर डोर, दैट स्टेपल डाइट्स जो हम लोग घर में खाते हैं रोज, बस हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी। So what are the things which are having more iron in it? We had green leafy vegetables. बिल्कुल याद कर लीजिए। I'm having some frog in my throat, थोड़ा सा सोरन है। नो प्रॉब्लम, आप आराम से बोलिए, या आई कैन अंडरस्टैंड। जो भी आपके आयरन रिच डाइट है उसमें आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, पराई, आजकल तो सब्जियों का हरी सब्जियों का भंडार है ना। आप मूली के पत्ते, पत्तेदार सब्जियां खूब खाइए, इससे बड़ी तेजी से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जागरी तो सही नहीं है, तो बिल्कुल घर में थोड़ी सी सॉरी आपको इंटरप्ट करने की, थोड़ा सा आपके यहाँ पे डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर आनी बंद हो गई है। अभी ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बाद थोड़ी आवाज क्लियर नहीं थी, तो सुनाई नहीं दिया। अगर आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा ये आयरन रिच है। इसके बाद जैगरी, जितने भी गुड़ है, जो जो बिल्कुल रॉ शुगर है ना, इनसे बहुत ज्यादा खून बढ़ता है। तो गुड़ से बनी हुई चीजें जैसे चिक्कियां आती है ना, तो हाँ वो जी। जो पट्टियां आती हैं मूंगफली की, उनको खाना अच्छा लगता है। तिल डाल करके गुड़ बना के घर में रख दीजिए, बच्चे भी उनको रोज खा के पानी पिए। वो जो हमारा पुराना रिवाज था दादी नानी वाला कि गुड़ खा के थोड़ा सा पानी पियो, दैट वाज सिंपल, दैट एडिंग अप आयरन इन योर डाइट डेली। अगर आप रोज एक गुड़ खा के टुकड़ा, अगर आप उसको थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, टेस्टी बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसमें तिल मिला के उसकी पट्टियां बना दीजिए, या मूंगफली मिला के, दालें मिला के कुछ बना दीजिए, और बच्चे उसको खाएं, तो वो बड़ी तेजी से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। फ्यू थिंग्स मोर आर देयर, डेट्स हैं जैसे कि खजूर, बहुत हाँ जी। बढ़िया हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। यस, बहुत बढ़िया। तो वो उसमें आयरन इतना रिच होता है। खाना लोहे की कढ़ाई में, सब्जियां जो है, साग सब्जियां सारी लोहे की कढ़ाई में बनती है, तो अच्छा। आयरन आपको उससे डायरेक्टली मिलेगा। ओके। कुछ जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है हमारी बॉडी में, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, अच्छा। खटाई, नींबू वाली खटाई, जो कि सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, संतरे हो गए, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई, ऐसी चीजें जिनको सिट्रस में मानते हैं। इमली वाली खटाई नहीं, खटाइयां दो टाइप की होती हाँ हैं, तो जी। जो अच्छी लगती है वो बात अलग है, बट नींबू वाली खटाई अच्छा। एंड आंवला, आंवला में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। तो अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड लेते हैं, एस्कॉर्बिक्स, तो आपका जो आयरन आपके खाने पीने में है, दैट गेट्स अब्सॉर्ब्ड वेरी इजीली, वो जल्दी से एंड रैपिडली, सो दिस फैसिलिटेट्स द आयरन एब्जॉर्प्शन।
और कुछ चीजें होती हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, जैसे कि फाइटेट्स होते हैं। फाइटेट्स हमारी चाय में मिलते हैं, फाइटिक एसिड मिलता है बहुत ज्यादा। खाने के तुरंत बाद इसीलिए कहते हैं कि आयरन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी खाने पीने में भी फाइटेट्स होते हैं। उनको लेने से क्या होता है कि वो आयरन से बाइंड जाते हैं। तो बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि ब्रेकफास्ट में अपनी दवाइयां रखी, चाय पी रहे हैं और फटाफट आयरन खा लिया, हाँ जी। तो आधा से ज्यादा आयरन विल गेट बाउंड अप टू दैट फाइटेट्स और वो उनका अब्सॉर्ब नहीं होगा। ओके, ओके ओके। तो बेटर आप नींबू पानी बना लें और उसके साथ आयरन लें, दैट अच्छा वुड बी बेटर, है अच्छा, ना। तो नींबू पानी बना के साथ में आयरन ले, और अगर हम थोड़ा सा गैप दें खाने के बाद, आप बोल रहे हैं वो बेटर हो गया, राइट? मतलब अगर जैसे 1 घंटे का गैप दे के हम खाएं, तो आपके हिसाब से क्या वो बिल्कुल, ठीक होगा? अच्छा। क्योंकि आपके पेट में बहुत गैस्ट्राइटिस होती है बहुत से राइट पेशेंट्स को, क्योंकि राइट बहुत से पेशेंट्स आयरन टॉलरेट नहीं कर पाते, इसीलिए राइट। उनको कहा जाता है आयरन रिच डाइट लो। और अगर आयरन रिच डाइट लेते हो तो साथ में अपने खाने के साथ में चाय पीना छोड़ दो, है ना, उन दोनों के बीच में गैप रखो। बिकॉज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, हमारे पेट से जो भी खाना होता है वो एम्प्टी होने में 2.5 से 3 घंटे लेता है। तो ओके। उतना टाइम का गैप होना चाहिए कंप्लीट अब्जॉर्प्शन के लिए, कि अगर आपका चाय पीने का मन है, आपने आयरन खाई हुई है, आपने नींबू पानी पिया हुआ है, कुछ कुछ लिया है, तो 2.5-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ही आप चाय पिए। Because tea taking is a habit now in India. हाँ Everybody is like 4-5 times आप दिन भर में चाय पीते हो. Whatever राइट। you have to take medicines or anything, like you want to satisfy your tongue also. Even then you are having tea with you. यस। So थोड़ा सा बचा and nothing ओके। else. और आप जैसे बोल रहे हो कि अगर जैसे हम अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये सब इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या हम उसके थोड़ी देर बाद ही नींबू पानी पी लें, ताकि वो जो हमारी डाइट है उसको भी वहां से भी आयरन अब्सॉर्ब करने में हेल्प हो? नहीं जस्ट नहीं, नींबू पानी साथ में लो ना, नींबू पानी आप साथ में ले लो, चटनी, आंवले की चटनी या कुछ ऐसी चीजें, या कोई अच्छा भी खाना उसमें नींबू निचोड़ लिया, बिकॉज दैट इज अच्छा गोइंग टू फैसिलिटेट अब्जॉर्प्शन। अच्छा, वो हम साथ में ले लें ताकि वो हेल्प करे। अच्छा, बस चाय आपने बोला कि वो हमारे को गैप रखना चाहिए। ये तो टैनिक एसिड, अच्छा। खाने में मिलने वाले फाइटेट्स, ये सब बाइंड करते हैं, तो ओके इसलिए आयरन उसके साथ लेने में थोड़ा सा आयरन कंप्लीट अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के पास नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी, काफी चीजें मेरे भी नहीं थी। मेरे ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि आप ये इतनी आसान चीजें बता रहे हैं जिससे हम घरेलू चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। घर की चीजें जो इतना आसान है करना, और जिनसे हम और बड़ी तेजी से बढ़ता है हीमोग्लोबिन। मैंने अपने पेशेंट्स को 9 से 14 पे पहुंचते देखा है, डेली फूड हैबिट्स में चेंजेस लाने के बाद। अच्छा। और एक और चीज है, कभी कभी क्या होता है ना कि यू हैव वर्म्स इन योर इंटेस्टाइन, हम्म पेट में कीड़े होना, वो हम्म। उससे बहुत ज्यादा आयरन लॉस होता है, ओके बहुत ज्यादा। कीड़े ओके। पेट में जगह बना लेते हैं, they just burrow themselves in your intestinal mucosa and from there they absorb the blood. they खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, हेलमेंट्स होते ओह, अच्छा हैं। सो हमेशा एक बार डीवर्मिंग जरूर एंड जरूर कर लेनी चाहिए डॉक्टर से पूछ के। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो खुद ही कर देंगी हाँ आपकी जी हाँ डीवर्मिंग, जी हाँ कि जी। आपके पेट में अगर वर्म्स है, आपका खून कितना भी ज्यादा हो, वो खून चूसते रहेंगे थोड़ा थोड़ा राइट। थोड़ा थोड़ा। जे यस। और जे सॉरी, हाँ जी, नहीं, कंप्लीट कर लीजिए। या मैम और बताना चाहती थी कि अनीमिया सिर्फ और सिर्फ आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया नहीं होता है, सो जी। मेनी अदर टाइप्स ऑफ एनीमियाज आर अच्छा आल्सो देयर। तो अच्छा डॉक्टर डिसाइड करती हैं। जो अच्छा। न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है एक जनरल तरीके से, एक न्यूट्रिशनल एनीमिया जो खाने पीने की कमी से होता है, तो हम्म जो हमारी, एक तो आयरन हो गया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, हम्म। दूसरा एक होता है फोलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया, अच्छा ये भी अच्छा। हमारे खाने पीने की चीजों में है। तो फोलिक एसिड, इसीलिए लेडीज में फोलिक एसिड इसलिए भी ऐड करते हैं, प्लस फोलिक एसिड की कमी से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो जाती हैं बच्चों में,
जैसे कि उनका पूरा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हुए बच्चा पैदा होता है और उसको स्पाइना बाइफिडा, उसका ब्रेन ओपन होता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड ओपन होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स भी फोलिक एसिड से कम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इसलिए इसको ऐड करने से अनीमिया भी कम हुआ, बच्चे में होने वाली जेनाइटल एनोमलीज कम हुई। एंड दोज हु आर टेकिंग प्योर वेजिटेरियन डाइट्स, तो उनकी खाने पीने में विटामिन B12 बहुत कम होता है, इसलिए उनको पर्नीशियस अनीमिया, एक खास तरह का अनीमिया हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि आयरन तो हम बहुत ले रहे हैं, जैसे यू टोल्ड कि मैं अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है। तो यू शुड गेट योरसेल्फ इवेल्युएटेड कि कहीं किसी दूसरे तरह का एनीमिया तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। तो यू शुड गेट योरसेल्फ इवेल्युएटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। ऐसी केसेस में कंप्लीट रिकवरी के लिए आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, प्लीज जरूर, साथ में विटामिन C, एज आई टोल्ड एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन C। विटामिन C की चूसने वाली गोलियां भी आती हैं, आप वो भी ले सकते हो आप ये। और आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C वैसे ही इतना ज्यादा रिकमेंडेड है, तो ये आपको चाहिए। हाँ जी। मेरी ऑडियंस से एक दो क्वेश्चंस आए हैं जो अभी रिलेटेड है हमारी कॉन्वर्सेशन से। तो नेहा पूछ रही है कि क्या आयरन डेफिशिएंसी से हमारी को हेयर फॉल भी हो सकता है, क्या वो भी एक सिम्टम हो सकता है? और आयरन की नाखून डेफिशिएंसी से, यस, आयरन डेफिशिएंसी से होता है। आयरन डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 डेफिशिएंसी से, जो मैंने बताया। तो आजकल की जो भी आयरन प्रिपरेशंस हैं, है ना, जैसे एमक्योर के प्लेटफॉर्म पे हम हैं, एमक्योर की आयरन प्रिपरेशंस और ऊपर इज वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें कंप्लीट पूरा आयरन, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन, लाइक ऑल दोज मिनरल्स आर देयर। तो आपको एक अच्छा सप्लीमेंट चाहिए, उससे आपका हेयर फॉल कम हो, बिल्कुल। ओके। और क्या नाखून टूटना भी उन्होंने पूछा है कि हेयर फॉल, नाखून टूटना, क्या ये दोनों ही सिम्टम्स हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी के? टूटना, क्या टूटना? नाखून, नाखून टूटना। यस, ऑल ओवर द बॉडी। आपकी स्किन, देखो, हेयर इज अ पार्ट ऑफ योर स्किन। तो आपकी स्किन, आंखें, आपके मुंह के अंदर का पार्ट जो कि इंटरनल स्किन होती है, जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, हमारे नेल्स, तो इन सब में, हालांकि नाखून का टूटना डायरेक्टली इज नॉट रिलेटेड टू आयरन, बट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ से। वंस यू आर हेल्दी, यू आर हैविंग एवरीथिंग इन योर बॉडी हेल्दी। तो आपको आयरन तो बहुत बेसिक चीज है ना आपकी बॉडी में। हाँ जी, तो अगर हाँ आप जी। हेल्दी हैं, ओके, ओके। आई थिंक काफी लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो फॉर एवरीबडी प्लीज नोट कि बहुत सारी चीजें होती है जो अफेक्ट कर सकती हैं, एंड आयरन इज ऑल्सो वन ऑफ देम जो को ध्यान देना चाहिए, राइट डॉक्टर? या हाँ जी। ओके। तो आई थिंक अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि कैसे हम अपने घर पे ही क्या कर सकते हैं आयरन को अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए, एंड क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारे को अनीमिया है तो हमारे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जैसे डॉक्टर बोलिए टेस्ट कराना है, या क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, या डाइट कैसे चेंज करनी है, उसका ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक इसी टॉपिक पे क्या आप एनीमिया फ्री इंडिया के बारे में बताना चाहेंगे कि कितना मतलब कितना मुश्किल है ये टास्क, और कितना डूएबल है ये टास्क कि हम एनीमिया फ्री इंडिया बना सकते हैं? देखिए, एनीमिया फ्री इंडिया बना पाना अभी डिफिकल्ट इसलिए है कि लोगों में जागरूकता की कमी है ना। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। जैसे कि उनको नहीं पता है कि बहुत छोटी छोटी बदलाव से, अपनी फूड हैबिट्स में चेंजेस से, डॉक्टर के पास टाइमली जाने से, अपने आप का इन्वेस्टिगेशन कराने से एनीमिया खत्म किया जा सकता है। एंड दे शुड नो कि उनका लेवल अगर 12 से ऊपर है तो दे आर डिजीज फ्री। क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली एनीमिया की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बच्चों की ग्रोथ, आप देखो, ग्रोथ स्पॉट, बच्चे जो अडोलेसेंट हैं, अगर उनमें एनीमिया है, उनकी ग्रोथ रिटार्डेड होगी, वो बहुत बढ़िया अच्छी हाइट नहीं होगी, अच्छा वेट गेन नहीं होगा, ब्रेन बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, बच्चे सुस्त रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे नहीं। व्हेन किड्स आर नॉट डूइंग वेल, तो आपका फ्यूचर भी तो सफर करेगा ना, हमारी कंट्री का एज सच। यहाँ पे बात हो गई।
After that, those females who are getting married and they are going to be mothers in recent future, if they are not having proper hemoglobin more than 12, है ना, 12 से ऊपर, अगर वो नहीं है तो वो आगे की प्रेगनेंसी कैसे प्लान करेंगी? अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है और वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर वो एक एनेमिक प्रेग्नेंट लेडी बनेगी, जिसकी वजह से उनके पेट से पल रहा बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, पेट में पल रहा बच्चा अच्छा नहीं बढ़ता, बच्चे का ब्रेन अच्छा नहीं बनता, तो द बेबी यू आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर इज नॉट दैट स्मार्ट। तो आपको कैसा लगेगा? यू हैव टू बी परफेक्ट हेल्थ वाइज, तब तो आप एक अच्छी कंप्लीट हेल्दी बेबी को पैदा करेंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारी बीमारियां हैं जो बड़ी तेजी से कोई भी पकड़ लेता है, बिकॉज इम्यूनिटी इज ऑल्सो डाउन। अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आप बहुत जल्दी प्रोन टू हैव इन्फेक्शंस। इसके अलावा आप आयरन डेफिशिएंट तो आपकी सांस फूलती है, आप घर के काम नहीं कर पाते, आपका वजन बढ़ रहा है, आपका पेट बढ़ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू बेयर दैट प्रेगनेंसी, तो आप कैसे 9 महीने लोगे? उसके बाद अगली चीज आती है कि आप एनेमिक हो, तो एनेमिक लेडीज को और ढेर सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, सीधे सीधे हार्ट पे असर पड़ता है, किडनी पे असर, तो वो फीमेल्स और बीमार होती चली जाती हैं। बच्चे को भी उन्हें उतना आयरन देना होता है, बच्चा भी तो अपना खून मां से ही लेके बना रहा है ये, और आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी लाइक एक्लेम्पशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें औरतों को झटके आने लगते हैं, बीपी बढ़ जाता है, दुनिया भर की चीजें। ये पाया गया है कि अगर कोई लेडी एनेमिक है तो वो उसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं और वो उसको झेल नहीं पाती। मान लीजिए कि ट्विन प्रेगनेंसी हो गई और आप एनेमिक हैं, आप कैसे करेंगे? 2 बच्चे आपके पेट में पल रहे हैं, तो बेटर दैट अ लेडी शुड बी हेल्दी, शी शुड हैव हर हीमोग्लोबिन मोर देन 12 बिफोर प्रेगनेंसी फ्रॉम द अडोलेसेंस। वो हमेशा हेल्दी हो, तभी तो उसका पूरा परिवार हेल्दी होगा ना, पूरा फ्यूचर हेल्दी, मतलब उसके ऊपर पूरा 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 परिवार टिका हुआ है एक लड़की के ऊपर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये अवेयरनेस, आपकी साइड से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है डॉक्टर। आ रही है डिस्टर्बेंस? अब थोड़ी बेटर हो गई। हाँ जी, अब थोड़ी बेटर है। नेटवर्क, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, नहीं, नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं। तो मैं जस्ट रीइटरेट करना चाहती थी जो आप बोल रहे हैं कि ये अवेयरनेस हमारे को डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए कि मोर देन 12 हीमोग्लोबिन हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, हमारी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होए तो इतनी सारी चीजें डिपेंड करती हैं अगर हो गई तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक पूरी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। आपने इतनी आसान चीजें बताई हैं जो हम घर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड एवरीबडी जो है हमारे ऑडियंस में प्लीज ये मैसेज पास ऑन करिएगा कि मोर देन 12 कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितना इम्पोर्टेंट है ये अवेयरनेस सब में डालने के लिए कि हीमोग्लोबिन लेवल एकदम सही होना चाहिए और आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास जो आपने एड्रेस किया है इन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट, बट उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि क्या आयरन लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे भी ड्रॉप हो जाता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, लेडीज की बॉडी टाइप्ड होती है फॉर दैट मेंस्ट्रुएशन, बट यस you lose around 30 to 80 milliliters of blood। तो 30 ml ब्लड तो इन जनरल हर फीमेल का हर महीने वो लूज करती ही करती हैं, जो कि मेल्स नहीं करते। तो डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करें तो आपकी बॉडी से उतना हीमोग्लोबिन लॉस, उतना ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब अनअवॉइडेबल है। यू कैन नॉट अवॉइड दैट, दैट इज योर फिजियोलॉजी, वो आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, आपके फंक्शन का, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। एवरी टाइम यू विल हैव टू एड दैट मच लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन टू यू, तो आपको अपनी हैबिट्स ऐसी बनानी पड़ेगी ना कि यू शुड बी रेडी टू लूज दैट अमाउंट, होना ही चाहिए, ऐसा करना होगा। बट दोज हु आर हैविंग हेवी ब्लीडिंग्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उनको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही थी कि पेट में कीड़े होना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रहा है। आपको मेंस्ट्रुएशन
ज्यादा हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता चला जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हीमोरॉइड्स हैं, पाइल्स हैं, आपको पता नहीं चलता, रोज थोड़ा 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 ब्लड करके निकलता जाता है, एंड यू फाइंड योर सेल्फ एनेमिक, तो आपको अपनी बॉडी में नॉर्मल से अलग कुछ भी अगर है तो डॉक्टर से मिलिए तुरंत, बिकॉज यू मे बी एनेमिक बिकॉज ऑफ दैट। और एनीमिया एक बार हो गया तो फिर तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वाई टू, लाइक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं ना, सावधानी बरतिए, क्यों उसमें पड़े ही, क्यों हम एनेमिक ही हो कि हमें उसको बढ़ाना पड़े। लेट्स बी ऑन द लेवल ऑफ मोर देन 12। Yes, definitely. And I think इसी thought पे एम्प्योर फॉर एनीमिया फ्री इंडिया के मोर देन 12 सिंबल हम दोनों दिखा देते हैं सबको, मोर देन 12। तो सब लोग प्लीज ये अवेयरनेस बढ़ाइए, एंड आई थिंक आई वुड ऑल्सो once more. आई थिंक अ I think स्क्रीन। यस। थैंक यू, प्लीज मुझे भी पास कर दीजिएगा ये, मैं भी अपनी ऑडियंस के लिए ये डालूंगी। एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन, एंड हमने ये एम्प्योर फॉर एनीमिया फ्री इंडिया ने जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, आई वुड रियली लाइक टू थैंक देम फॉर इट, एंड आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक यू डॉक्टर पूनम मिश्रा कि आपने इतने अच्छे से मेरी ऑडियंस को समझाया है, और ये बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच, एंड लेट्स कीप स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय बाय।